Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself from Ujaz. So a very good evening, good morning and good afternoon to you all. So it doesn't matter at any time you are watching my video, no problem. But we can see that today we are going to discuss about nervous tissue. But before going to the nerve cell or neuron, we need to take a short recap of connective tissue. As in our last video, I had not completed the overall concept regarding to connective tissue. So first of all, we will move from there only, and at last of this video, we will finish the whole chapter of tissue, means that our nervous tissue or neuron. So let's continue and let's take a short recap of connective tissue. As I told you in last video only, there are 5 types of connective tissue. So let me write the first, second, third, fourth. First their names only. And as I told you in last video, we discussed about areolar connective tissue. So there is no any more requirement to go through this areolar connective tissue. Second one we know dense regular connective tissue. Third one we know skeletal tissue. Then we can see fourth one adipose, and last one we knew what? Fluid connective tissue. Fluid connective tissue. So one by one we will move from these all terms. So as I told you, areolar connective tissues are also named by another name, which is loose connective tissue. Loose connective tissue. And that's why we can see here dense regular or hard connective tissue. This one is loose and this one is hard. Then we can see, leave it. If you are having any doubt, then leave it, man, no problem. Then we can see here they are termed as loose. Then we can say here tight, no problem. Then skeletal connective tissue. Skeletal connective tissues are mostly involved in those activities where the bones are required to be connected to the muscles. So there we will see skeletal means what? It doesn't matter only muscles only. Sometimes we will see even bones are also required to be connected through the two bones. Then adipose tissue, as I told you about the cells of adipose, they are mostly involved in the fat globules. Last one, fluid connective tissue. Fluid connective tissues involves two different types of connective tissue. First one, blood connective tissue, and the second one, fluid, or we can say another connective tissue, which is also very important. So first one we saw here, blood. In fluid connective tissue, as I told you, they involves two different types of fluid connective tissue. First one I told you blood, and second one lymph. Actually about lymph I told you in class 10 in detail. So we will see only a short quick recap about the lymph connective tissue. So first of all we are going to see about areolar tissue in detail. So let's see about areolar connective tissue. So finally guys, areolar connective tissue is very essential and important for our organs. Why? Because areolar connective tissue is almost found in every region of our body. Not only I am talking about human beings, but all mammals. So finally guys, we are going to discuss about areolar connective tissue in detail. So first thing, as I told you, they are found in abundance, means that they are mostly in large number available in all organs, all organisms, not only in our human beings body, even in all organisms. Even they can be mammals, or we can say they can be cat, elephant, lion. These all organisms, means that all those living organisms apart from plants, because I am talking about animal tissues guys. So as I told you, they are found in abundance in all the organs body, all the organisms, only animals body, mammals body. So next thing that we are going to see about areolar tissue is that where they are found. About nature, as I told you, they contains all those cells, adipose cells, white fibers, red yellow fibers, collagen, elastin, reticulin. All these fibers are available in their matrix. So no need of worry about their nature, as we told in last video only. So the next thing we are going to see about their occurrence, means that where they are found. Occurrence. Actually areolar connective tissues are found in those regions where
muscles are required to be connected. So don't get confusion if I am telling here areolar and in you will say that I told even this one in skeletal tissue. So don't worry about that, because areolar tissue is also found in almost every region where the connective tissues or where the muscles are required to be connected. The next thing, they are found in those organs, they fulfill the organs. Certain organs, we can say our 5 sense organs we got. Skin, in a skin they are actually helpful, they fulfill the overall spaces, or we can say left spaces is fulfilled by connective tissue, areolar connective tissue. The next thing is that they are found in blood vessels. As we know that there are 3 types of blood vessels: veins, arteries and capillaries. So in order to connect these all terms, or we can say in order to connect the connective tissues like vessels, nerves, these regions also possesses this areolar connective tissue. The next thing that we are going to see about their function. So don't worry about their occurrence. As I told you, they are found in almost all organs, even in our nerve vessels, you can say capillaries, artery, doesn't matter. Then we can see here function. The function is very, very essential for areolar connective tissue. The main function is involved by this connective tissue is that they help in transportation of oxygen or diffusion of oxygen in our organs. As we know that, guys, oxygen is taken by us through our breathing. As we breathe in, we takes air and air contains oxygen also. So there we can see areolar connective tissues are helpful in the diffusion of this particular oxygen. So we can judge they are mostly available in our lungs region. So overall we can see they are available, or their occurrence is in lungs region. So next thing about their function, as I told you, they help in the diffusion of oxygen O2. Next thing is that they also help in fighting against diseases. How? Because they possesses macrophages, immunocytes, and these all cells we already knew. These all cells are the components of WBC, which helps in fighting against the infections. तो next thing guys, इसके बाद क्या है कि they are also helpful in inhaling the injuries. इंजुरीज को भी ये प्रिवेंट कराने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, या उसे वापस भरने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑफ लार्ज सेल्स पाए जाते हैं, वो हमारा फाइबर हो, हमारा कुछ भी हो, लेकिन इसका एक बात हमेशा याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किसी भी और कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में. ठीक है. और एक चीज़ और जो लास्ट थिंग है इसके बारे में वो जान लो कि इसका जो डायग्राम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों? क्योंकि इसके डायग्राम हमें लोकेट करना माइक्रोफेजेस, इम्यूनोसाइट, मास्ट सेल्स, हमारा फाइबर्स लोकेट करना, हमारा मैट्रिक्स को लोकेट करना, इवन कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का अपना जो ब्रांच होता है उसको लोकेट करना. तो इसका जो फिगर होता है ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. सो दीज ऑल टर्म्स वी डिस्कस्ड अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब चलो बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. सो फाइनली वी आर गोइंग टू सी अबाउट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. So finally guys, we are going to see about dense regular connective tissue. So let me write here dense regular connective tissue. So guys, dense regular connective tissues are further classified into 3, but here we can see in class 9 our topic we have to see only 2, but then also I am going to write you the 3 types of dense regular connective tissue. First one is tendons, second one ligaments, and the last one aponeurosis. Aponeurosis, APENOU. लेट मी सी. देयर वीडियो क्वालिटी थोड़ा आपका ख़राब है, लेकिन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ. APONEU APENO. सॉरी, ये तो मेरा स्पेलिंग गलती है. अपोन्यूरोसिस. ठीक है, अपोन्यूरोसिस. अब देखने दो मेरे को, ठीक आ रहा है. APONEU एप्यून्यूरोसिस. ठीक है, एप्यून्यूरोसिस.
NEUROSES। तो ये हमारा एपियोनोरोसिस, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इनका जो बेसिक यूज होता है वह कहाँ होता है। मैंने बताया कि ये जो मोस्टली वर्क इन्वॉल्व करते हैं, इनका बहुत ही बड़ा ज्वाइंटिंग एरिया में वर्क होता है। यानी ये ऑलमोस्ट आपको तो लग रहा हो कि दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज ओनली। सो हाउ these three terms are important. So first we are going to see about tendons. Actually guys, tendons are those connective tissues which involves in the function of connecting two bones together. Always हमेशा याद रखना कि अगर two muscles कहने का मतलब एक मसल रहेगा, एक हमारा बोन रहेगा। तो यहाँ पर से देखो टेंडन, वी आर गोइंग टू सी अबाउट टेंडन। तो टेंडन का मेन रोल क्या होता है कि दे ज्वाइंट व्हाट, वन बोन, जरूरी नहीं कि वन ही बोन रहे, बट हमें समझने के लिए वन बोन एंड वन मसल, यानी एक बोन और एक मसल को ज्वाइन करने का जो वर्क होता है वो टेंडन्स के द्वारा फुलफिल किया जाता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमेशा याद रखना कि ये जो होता है वो इनइलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन्स दैट कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंड, सॉरी गाइस, ये इलास्टिक होते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेंडन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंडन। दे आर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि उन्हें आप ज़्यादा खींच नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग जानते हैं टेंडन्स के बारे में। एक चीज़ और जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, वेट या चलो इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू सी एज ए होल, क्योंकि ये टेंडन्स इनके फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इनमें आपको मैं उतना नेचर और इनका जो ऑक्यूरेंस होता है वो फंक्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ओवरऑल इनका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो उनके बारे में आपको टेंडन के बारे में ओवरऑल सॉल्व कर दूंगा। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने जाना कि वो इनइलास्टिक होते हैं। सेकंड थिंग हम लोगों ने जाना कि वो बोन और मसल्स को कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे वन बोन या वन मसल्स नहीं समझना, बल्कि मैंने बोला कि इनका जो मेन रोल होता है वो बोन एंड मसल को ज्वाइंट करने का होता है। थर्ड थिंग देखो कि इनका जो फंक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है वह हमारा वाइट फाइबर से मिलकर बना होता है। कैसा? वाइट फाइबर्स। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि व्हाइट फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं। व्हाइट फाइबर्स का नेम क्या है? व्हाइट फाइबर्स प्रोटीन के तो होते ही होते हैं, और इनका एक अपना नाम क्या है बताओ? आपको पता होगा, मैंने बोला है कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। तो कोलेजन तो मेरा येलो है, सभी को पता है। तो ये कौन सा हो गया? इलास्टिन। तो ये किस फाइबर के बने होते हैं? इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं। चलो अब इनका एक डायग्राम देख लूंगा। तो डायग्राम इनका सिंपल इसलिए मैं बता दूंगा, और डोंट वरी अबाउट द डायग्राम ऑफ एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज आई विल अपलोड द emails on our telegram channel. So if you are in our telegram channel, so no need of worry about the diagram of these all particular connective tissues. अब चलो बात करते हैं इनकी डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम से ही आपको 3 से डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इनके बारे में जानो कि लिगामेंट जो है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज लिगामेंट। लिगामेंट इज टोटली अपोजिट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेंडन्स। मीन्स दैट कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बोन एंड मसल को ज्वाइन करते थे, बट लिगामेंट कनेक्ट्स टू bones. They joins two bones. The next thing is that they are made from white fibers only, but ligaments are made from blue and yellow. Means that they are made from both elastin and collagen fibers. Now next thing that we can see, they are what? They are elastic in nature. Elastic means that whenever we can see, ये जो हमारा ये सभी कनेक्टिव टिश्यू हमारे ऑर्गन में होते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे यहाँ पे बॉल एंड सॉक ज्वाइंट है, हम लोग सभी को पता, हमारे शोल्डर में। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर है, और जब भी हम लोग अपने हैंड को ऐसे करते हैं, ठीक है, देखो आपको क्लियर दिखाता हूँ मैं। सपोज दिस इज माई, यू कैन ऑल कैन सी, आपको क्लियर आया? देखो अब ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ज्वाइंट है, और वो भी ज्वाइंट हमें पता है यहाँ पे मेरा बॉल एंड सॉक ज्वाइंट है। तो जब हम लोग अपने हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, या ये रीजन आपको पता है बॉल एंड सॉक ज्वाइंट यहाँ पे। तो जब हम लोग अपने हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे जो दो बोन्स है, ये दोनों बॉल एंड सॉक ज्वाइंट के बोन, इन्हें कनेक्ट किया हुआ है लिगामेंट। लेकिन अगर बात की जाए, ये हमारा बाइसेप्स ट्राइसेप्स है, इन्हें जो कनेक्ट करता है वो हमारा है टेंडन्स। तो आपको पता चल गया कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक चीज काफी दोनों में कॉमन होता है। अब कॉमन क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से बांधे रहते हैं, या कहो कि वहां पे एरियोला कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन एविडेंस, मींस दैट इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन you will find connective tissue, areola connective tissue. The next thing about aponeurosis, aponeurosis are having the semi characteristics of these two.
यानी देखो इसमें कैसा आपको लग रहा हो व्हाइट फाइबर है कि येलो फाइबर, ये एक्चुअली येलो फाइबर का भी बना है और व्हाइट फाइबर का भी बना है। नेक्स्ट थिंग चलो बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये पोरस होते हैं, इनका जो मैट्रिक्स होता है उनमें एक काफ़ी उनके मैट्रिक्स में काफ़ी स्पेशल टाइप का या कहो कि स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी डेंस होते हैं। मीन दैट कि ये दोनों के कंपेयर में ये भी डेंस होते हैं। तो आप अपेंडोसिस को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसका यूज या इसका कहो कि हम लोग को सटीक कोई इसका डिफ्रेंसिएशन या डायग्राम हमें नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया डायग्राम कहाँ होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सो फाइनली गाइस, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है या कोई स्पेशल टर्म्स आपको पूछना है तो आस्क कर लो कमेंट में। हाँ, एक बात और जो आपका कमेंट में आ रहा है उसे मैं पढ़ के बताता हूँ, वेट करो वेट। चलो ये नेहा कुमारी ने पूछा है कि क्या हम लोग इसमें जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उसमें कोई डिजीज पाया जाता है। या आर यू टॉकिंग अबाउट अ स्प्रेन है तो हाथ उठाओ। या नेहा अग्रवाल ने ही पूछा है, सॉरी नेहा कुमारी ने पूछा है स्प्रेन के बारे में। गुड क्वेश्चन। अबाउट स्प्रेन, व्हाट इज अ स्प्रेन? स्प्रेन का मतलब होता है एक प्रकार का खिंचाव, अगर हिंदी में समझो तो खिंचाव। और खिंचाव कहाँ पे आएगा? हम लोग को पता है कि जो एक मसल्स और एक बोन को खींचता है या एक बोन्स और एक मसल्स को बांधता है वहाँ पे एक्चुअली जल्दी से हमारा स्ट्रेन नहीं होता है। लेकिन जो हमारे दो बोन्स को कनेक्ट करता है और इलास्टिक होता है, ओवर एक स्ट्रेच के कारण वहाँ पे हमारा स्ट्रेन हो जाता है। और स्ट्रेन का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा मसल्स थोड़ा सा या बोन्स मसल्स जो होता है वो खिंचा जाता है। अब समझ रहे होगे, आपको मसल्स का नाम आया तो आपको लग रहा होगा टेंडन्स होता है, लेकिन मसल्स खिंचाता है। क्यों खिंचाता है? क्योंकि दो बोन्स का जो ज्वाइंट होता है वो थोड़ा खिंचा हुआ होता है, तो वहाँ पे मसल्स थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। और ये जो स्प्रेन होता है ये हमेशा SPRAIN स्प्रेन कहाँ होता है? ये हमारा लिगामेंट्स के ओवर स्ट्रेचिंग के कारण हो जाता है। ठीक है, अब आपको डाउट है कोई और? या एक डाउट और आ रहा है, कौन आ रहा है? पूछिए। या वन मोर डाउट प्लीज आस्क। ओके, दीपक कुमार ने ये डाउट पूछा है, वेट करो दीपक। या व्हाट इज योर डाउट? गुड क्वेश्चन, अपना हाथ उठाओ, आपका डाउट मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, हाथ उठाना अपना। हाँ, तो उनका डाउट क्या है कि क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में या डेंस रेगुलर में? हाँ जी, आपका क्या डाउट है कि कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, योर क्वेश्चन इज दैट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन दिस कनेक्टिव टिश्यू। सो क्या उनका स्ट्रक्चर भी पाया जाता है? जी हाँ, पाया जाता है। तो आपका कहने का मतलब यही ना है कि यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपको लग रहा हो कि क्या ये भी इन्वॉल्व करता है फंक्शन, जैसे कि वो फाइट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, या कार्यों की बॉडी का रिपेयर करता है, तो क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? नहीं, उसका मैंने बहुत सारे फंक्शन बताए। तो वो डिपेंड करता है कि उनके मैट्रिक्स में कौन सा सेल्स अवेलेबल है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को एज ए होल आई टोल्ड यू दे आर इन्वॉल्व सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो एज ए होल आई टोल्ड यू देयर फंक्शंस, but here we can see only certain types of cells are involved or are put in the matrix of this particular areolar connective tissue, and because of that उनका फंक्शन भी थोड़ा लिमिटेड वे में वर्क करता है। सो आपका भी डाउट क्लियर है? हैंड रेज करो, बहुत बढ़िया। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो एडिपोज जानो या स्केलेटल जानो, बात बराबर है। तो पहले एडिपोज को छोड़कर स्केलेटल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्केलेटल। So finally guys, we are going to see about skeletal connective tissue. So let me write here skeletal. Third one, don't worry about the specific classification, या कहो कि हमारा जो चेन है या फर्स्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं, ऐसा कोई जो नहीं। पहले आप योला पढ़ लिए, इसमें भी कोई बात नहीं, फ्लूइड भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर माइंड में एक कंसेप्ट रहना चाहिए। So now we are going to see about skeletal connective tissue. About a skeletal connective tissue, we discussed about skeletal muscles, स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स। आपको याद होगा? यस गाइस, वी डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल मसल्स इन मस्कुलर टिश्यू। देयर आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रिएटेड मसल्स, व्हाई दे आर टर्म्ड एज स्केलेटल मसल, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली हियर द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट वे ओनली। सो गाइस, यहाँ पर से एक चीज जानो कि जहाँ पर भी हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, means that wherever we will see the skeletal connective tissue, they are mostly involved in the connection। पता है सभी को? अब कनेक्शन दो प्रकार का होता है, ये भी पता है। अब हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, वो वाला कनेक्शन की बात छोड़ो, मैंने भले ही बताया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये सभी कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो इनका वर्क तो कहीं ना कहीं सेम है। बट जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसका दो टाइप होता है, और दोनों का जो पार्ट है या कहो दोनों का जो वर्क है वो कनेक्टिव टिश्यू में मैटर ही नहीं करता है। भाई क्या हो रहा है? चलो
आपको बता देता हूँ. Here we can see they are further classified into two types. Oh, wait guys. First one our first one bone एंड सेकेंड वन क्या है. अब देखो बोन का जस्ट अपोजिट होता है कार्टिलेज. सो ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन बोन एंड सेकेंड वन कार्टिलेज. आपको क्लियर दिख रहा है? या दे आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन बोन एंड सेकेंड वन कार्टिलेज. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट बोन एंड कार्टिलेज एज ए होल. और आपको डायग्राम दे दूंगा क्योंकि इनका डायग्राम काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इज दैट the matrix region of the skeletal connective tissue is known as lacunae. चलो मैं आपको जो लिख कर देता हूँ सब याद करते जाना. मैट्रिक्स एज ए होल पहले मैं बात कर लेता हूँ. मैट्रिक्स का नाम है लैकुनी, ठीक है. NEA या NEA. लेट मी क्लियरिफाइड, NEA या NEE. चलो भाई हमारा सही बात है NAE. तो मैंने बोला यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेना NEA या NAE. तो NAE होता है, कोई बात नहीं है. तो लैकुनी, इनका जो मैट्रिक्स का जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं लैकुनी. सेकेंड थिंग हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होते हैं. अगर ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं तो यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं तो मल्टीन्यूक्लिएट. वेदर दे डिफ्रेंशिएट और नॉट मीन्स दैट इनका जो ग्रोथ होता है वो होता है कि नहीं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग जानेंगे कि ये कैसे फाइबर से बने होते हैं. उसके बाद जानेंगे ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं. फिर जानेंगे कि इनका जो रीजन होता है उसमें नर्व वेसल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं. देन वी विल सी वेदर दे आर सॉफ्ट और हार्ड. देन वी विल सी वेदर दे आर पोरस और नॉट. तो ये सभी जो क्लासिफिकेशन, ये सभी जो टर्म्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम ओनली दीज टू टिश्यूज आर फर्दर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. तो पहला बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. तो कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना. दे आर सॉफ्ट एज कंपेयर टू बोन. और ये कैसे हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे. अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट जो इनका डिफरेंशिएशन होता है वो कैसा होता है. अब कार्टिलेज में जो होता है वो वेसल्स नहीं पाए जाते हैं. कैसे नहीं पाए जाते हैं? वेसल्स आर एब्सेंट. सो ऑब्वियसली गाइस वी कैन सी हियर वेसल्स आर प्रेजेंट. Next thing we can see vessels means blood vessels only. Don't worry or don't think about other vessels क्योंकि other vessels तो होता ही नहीं है. Next thing that we can see about cartilage is that they are porous or not. देखो porous का मतलब होता है कि क्या उनमें होल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. अब porous उनमें होता ही नहीं है क्योंकि वो सभी जो होते हैं वो बोन में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे porous और यहाँ पे नॉन पोरस. ओके, नॉन पोरस. देन नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर गाइस, उनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या उनमें व्हाइट फाइबर पाए जाते हैं या येलो फाइबर. तो दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम प्रोटीन्स. बट यहाँ पे क्या होता है कि फोस्फेट प्लस प्रोटीन, फोस्फेट कंपाउंड प्लस प्रोटीन. आर यू गेटिंग ऑल? वहां तक दिख रहा है? चलो ठीक है. अब एक बात और जानो कि इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो आपको बेसिकली लग रहा हो यहाँ पे इलास्टिन, कोलेजन सब फाइबर पाए जाते हैं और यहाँ पे नहीं. एक्चुअली गाइस क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इलास्टिन, कोलेजन तो पाया जाता है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी वेरी वेरी लीस्ट अमाउंट में हमारा फोस्फेट कंपाउंड होते हैं. बट इन बोन में मोर अमाउंट ऑफ फोस्फेट कंपाउंड पाए जाते हैं. अब एक बात जो कि इनके बीच में काफ़ी मेन होता है या इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है वो है इनका फर्दर डिवीजन. तो हमेशा याद रखना कि कार्टिलेज का जो डिवीजन होता है वो मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है. एंड डोंट वरी अबाउट, क्योंकि मिटोसिस एंड मायोसिस के बारे में आई हैव नॉट टोल्ड यू मच मोर इन डिटेल. बट गाइस in this video only I will tell you in detail about mitosis and meiosis because mitosis का हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे रोल आने वाला है, या मायोसिस जो भी कहो आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा इसमें नर्व सेल में. ठीक है, तो चलो यहाँ पर से दिखाया गया कि ये मिटोसिस के थ्रू क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. अब एक बात जो ये दोनों में बहुत ही डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या होता है कि इनका जो डायग्राम होता है या इनका जो प्रेजेंस होता है वो कहाँ होता है. चलो, कार्टिलेज का जो प्रेजेंस होता है वो हमेशा सॉफ्ट रीजन में होता है. जैसे वी कैन सी यार आवर ईयर टिप, यहाँ पे जो हमारा है कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है. हमारे विंड पाइप के अंदर एक बहुत देखेंगे तो आपको सॉफ्टी लाइक रीजन दिखेगा, वहाँ पे हमारा कार्टिलेज होता है. बट बोन का तो क्या करना है, सभी को पता है कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ ए बॉडी.
So guys, these all terms we discussed. Now let me draw the diagram and before that let me see if any term is left. तो आपको बता दूंगा और उसके बाद आपको डायग्राम बोर्ड पर लाके दिखाता हूँ. So guys, only one term be left over here is that about their cells. अब चलो हम लोग को पता है कार्टिलेज एंड बोन बहुत दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है एंड वैसा ही डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है इनके सेल्स में. इसके सेल्स का नाम है हमारा कॉन्ड्रियोसाइट. कॉन्ड्रियोसाइट कॉन्ड्रियोसाइट ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट. एंड इसका नाम है हमारा ऑस्टियोसाइट. क्या है? ऑस्टियोसाइट. अब चलो कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट का डिफरेंस तो हमें पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट लेटर वी कैन सी गाइस, यहाँ पे एक टर्म आता है ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट एंड एक नाम आता है हमारा कॉन्ड्रियोब्लास्ट. 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 अब लग रहा होगा भाई ये क्या नाम आ गया, ब्लास्ट यानी बूम. अब ये बूम वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक और दिमाग लगाने वाली बात है. वह क्या है चलो बताता हूँ. एक्चुअली गाइस कॉन्ड्रियोब्लास्ट से ही हमारा फटने के बाद बूम होने के बाद हमारा ये बच्चा जो कॉन्ड्रियोसाइट है वह बनता है. तो हमें पता चल गया ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट हुआ और हमारा कॉन्ड्रियोसाइट बन के आ गया. और सिमिलरली यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट में बूम होता है और बूम से हमारा ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हमें लग रहा है. क्या यहाँ पर भी वही होता है? चलो मैं बताता हूँ. एक्चुअली गाइस होता तो वही है लेकिन बायोलॉजी के अनुसार थोड़ा डिफरेंट होगा ना जी. हमारा बेसिक लाइफ में जो होता है वही होता है नहीं. तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द cartilage whereas chondriocyte is responsible for maintaining the strategy or maintaining the position of cartilage. तो आपको पता चल गया ये भाई वही चीज है. बट यहाँ पे आ जाओ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, क्या ये वही होते हैं? बिल्कुल नहीं. कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट में डिफरेंस क्या होता है कि जिस तरह से ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहा था उसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल रोल निभाता है ऑस्टियोब्लास्ट जिसके थ्रू लेटर ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन कई बार आपको देखने के लिए लिख जाता है कि बोथ आर दी सेल्स ओनली, यानी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट को एक ही मान लिया जाता है. अब चलो बात करते हैं इनके डायग्राम के ऊपर. तो आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ दिस टू particular connective tissues. So finally guys we can see over here the diagram of our which one, इसका नाम है हमारा कार्टिलेज. अब कार्टिलेज का ये रीजन आपको मैंने बताया ये कैसा होता है, ये हमारा लैकुनी कहलाता है. LAC लैकुने. अब NAE या NEA, तो NAE लैकुने. अब ये कैसा होता है, ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है. नॉन लिविंग मैट्रिक्स. अब आपको लग रहा हो ये हमारा न्यूक्लियस है तो जो बोलो, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है हमारा ऑस्टियोसाइट होता है. ठीक है, अब हमें पता चला कि ये एक्चुअली ऑस्टियोसाइट ही है, पूरा एक सेल ही है, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स आवर विच वन टेल मी, बोन. अब बोन का बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएशन ये दोनों में बीच में है, डिफरेंट दोनों टर्म है, क्योंकि बोन का स्ट्रक्चर काफी हाईली क्या होता है, हाईली दोनों डिफरेंट क्या होता है कि वन इज इजिली लोकेटेड बट बोन इज हाईली ब्रांच्ड. मीन्स वहाँ पे काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है. अब डेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फर्स्ट वन वी न्यू अबाउट ऑस्टियोसाइट. सो फर्स्ट वी हैव टू लोकेट हियर ऑस्टियोसाइट, 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 ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट. अब ऑस्टियोब्लास्ट कैसे बनता है ये आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि डायरेक्ट आपको डायग्राम के ऊपर लेके चल रहा हूँ. So here we can see osteocyte. Here one we can see a round structure like region and this region is made of what? This region is made of somewhat protein content. ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है ये हमारा कौन सा है? ऑस्टियोसाइट. अब ये जो ऑस्टियोसाइट होता है ये हमारा लैकुनी रीजन है. दिस इज आवर लैकुनी रीजन हुआ. ये हमारा ऑस्टियोसाइट हुआ, ऑस्टियोसाइट. अब हमें पता है कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं. कैसे? और ये जो स्ट्रिंग्स होता है ये सबको कनेक्ट करता है. ये कैसे? दीज ऑल आर ऑलवेज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, यानी वैसा सर्कल जिसका कि एक रेडियस है बल्कि एक ही सेंटर से स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत सारे उसके रीजन हैं. और ये हमारा डायग्राम बन गया किसका?
किसका बन गया डायग्राम, बोन का स्ट्रक्चर का। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स लोकेटेड होंगे और भी सभी ऐसे 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 कनेक्टेड होते हैं एक दूसरा से, ठीक है। और ये जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल रहा है, इससे हम लोग कहते हैं कैनल कुली। व्हाट, कैनल कुली, कैनल कुली। एंड ये जो हमारा कैनल कुली है, ये एक सेल को यानी एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो सेंट्रली लोकेटेड पोजीशन, इसका नाम है हर्बेशियन कैनल, हर्बेशियन कैनल। The last thing that we can see over here, because of canal colony only, proteins, waste materials and all those required elements are transferred to each cell of osteocyte। तो भाई इतना पता हो गया कि ये हमारा कंप्लीट डायग्राम किसका है, बोन का डायग्राम है। अब इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट एडिपोस टिश्यू। सो फाइनली आई विल ड्रॉ फर्स्ट द सेल ऑफ एडिपोस टिश्यू, बिकॉज एडिपोस का भी डायग्राम कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। सो फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू सी अबाउट एडिपोस टिश्यू। सो लेट मी राइट हियर, फोर्थ वन वी आर डिस्कसिंग हियर एडिपोज। During the beginning time only I told you about adipose in the pre-session of this particular video. There I told you adipose means fat. Adipose means fat connected tissue, or we can say the tissue which is involved in the location or which is having a fat globule is known as adipose. Adipose का मतलब होता है फैट या हमारा लिपिड। चलो इतना बात हो गई adipose के बारे में। The next thing that we can see about their nature। अब आ जाओ अपने एक्चुअल पाथ पे, नेचर, ऑक्यूरेंस एंड फंक्शन। फर्स्ट वन नेचर जानो। नेचर इनका कैसा होता है कि यहाँ पर भी वी कैन सी वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। अब आपको एक डॉट आ रहा होगा कि व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स का मैंने आपको एक स्पेशल नेम बता दिया। कौन सा? व्हाइट इज नोन एज कोलाजन एंड येलो इज नोन एज इलास्टिन। सो डोंट फॉरगेट दिस ऑल टर्म्स, क्योंकि येलो हमारा क्या होता है, इलास्टिन होता है, व्हाइट हमारा कोलाजन होता है। अब ये दोनों पाए जाते हैं इनके नेचर में। और इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर जो होता है वो होता है दे आर एज लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब जानते हैं हम लोग का जो बोड़ा होता है, या कहो जिस पे थैला हम लोग, वैसे थैले लाइक स्ट्रक्चर का इसका शेप होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ, एक तो इसका शेप में आपको एक बड़ा सा फैट का ग्लैबोस दिख रहा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं अबाउट बिन्यू अबाउट अमीबा, दे एक्वायर देयर फूड थ्रू स्यूडोपोडिया, देयर वी कैन सी फूड वैक्यूल। सेम एज लाइक में इसका भी एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर, लेकिन वही नहीं होता है। वैसा एक स्ट्रक्चर इनका भी होता है, किनका? एडिपोस टिश्यू का। अब चलो एक टर्म और जो इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडिपोस टिश्यू के बारे में, वो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है। तो चलो गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ओनली। दे आर मोस्टली राउंड और ओवल इन शेप। चलो ये बात तो मैंने आपको बता दिया, राउंड और ओवल, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन एक बात और जो हमें जानना है इनके ऑक्यूरेंस के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन आवर स्किन रीजन, बिलो द स्किन, and sometimes nearby blood vessels। ठीक है, ब्लड वेसल्स के नियरबाई ये पाए कभी कभी जाते हैं, या कहो कि ब्लड वेसल्स में पार, इनसे पार होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस आर इन्वॉल्व बाय एडिपोस टिश्यू। नॉट ओनली दे आर हेल्पफुल इन गिविंग अस द stored fat material or lipid material, but then also they are also involved in many more functions apart from this particular function. The first function is that they act as like insulator and they mix our skin, prevent, or they helps our skin from getting damage, and from outer something or outer disturbance they help in prevention. So first we can write they prevent the upper skin level. Next word we can see they also help in providing us they provide stored which one is stored? Fat
to organs. Later we can see they also help in giving a proper shape and size to the organs. So they help in giving proper size and shape. एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. वी नो डैट इन आवर लेग्स हमारा एक जो मसल्स होता है बिलो आवर लोअर बोन या फीमर के नीचे हम लोग दिखते हैं, एक थोड़ा सा फ्लैट एंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स के अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं. एक्चुअली जो उसका जो वैसा शेप होता है वो मेंटेन किया जाता है दिस पार्टिकुलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू. ओके, सो फाइनली गाइस वी कंप्लीटेड दिस वन. एंड इफ यू वांट दिस डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम सिंपल ऐसा है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे जाओगे तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ. देखो सपोज ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप है, ऐसा ही समझो. तो यहाँ पे मेरा एक एडिपोज का अपना एक सेल है, यहाँ पर से मेरा फैट लेवल्स पार हुआ, यहाँ पर से इलास्टिन फाइबर, फिर इस साइड से हमारा कोलेजन फाइबर सभी पास होंगे. एंड इनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसका डायग्राम आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा. बिकॉज इफ आई विल ड्रॉ देन यू मे नॉट गेट क्लियर व्यू और क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर दैट पर्पस ओनली आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट एंड वी आर गोइंग टू सी द लास्ट कनेक्टिव टिश्यू which is our fluid connective tissue. So finally guys, at last we are going to see about fluid connective tissue, which is our fifth part or fifth type. Fluid connective tissues are further involved in two different classifications, where they are as blood or then they are in another term they are as fluid or lymph. ठीक है, अब चलो बात करते हैं ब्लड एंड लिम्फ के बारे में डिटेल से. सो अबाउट ब्लड हमें बहुत कुछ जानना है. सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड सब क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये हमारा सब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस. सो एज ए होल वी विल सी अबाउट ब्लड. जो भी हमें जानना है पूरा जान लेंगे, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं. तो पहला हम लोग को पता है ब्लड का भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. क्या क्या? 3 रीजन्स होता है, या कहो कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है हमारा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. सेकेंड होता है हमारा प्लेटलेट एंड थर्ड होता है हमारा ब्लड सेल्स. ठीक है, वी ऑल न्यू दिस टर्म्स, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू स्टडी इन क्लास 9. व्हाई? पहले जान लेंगे इसका नेचर, ऑक्यूरेंस एंड फंक्शन एज ए होल, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ब्लड. अकेले हमारे लिए काफ़ी ये डिफिकल्ट टॉपिक होता है हम सभी को समझने के लिए, लेकिन मैं ईजी में आपको क्लियर ही करूँगा. पहले हम लोग जानते हैं ब्लड का 3 कंपोनेंट होता है. कौन कौन? पहला हमें पता है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड लाइक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा. और ये ब्लड का 55% जो टोटल मैट्रिक्स होता है वो यही एक्योर करता है. और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सभी प्लेटलेट्स, ठीक है, आपस स्पेलिंग पर मत जाओ, बल्कि ये सभी जो होते हैं वे प्लाज्मा के अंदर ही ऑक्योर किए जाते हैं. लेकिन एक बात जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इनका जो ब्लड्स का जो इनका जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ये काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी एज देयर मैट्रिक्स. तो ब्लड में हमेशा याद रखना प्रोटीन का कंटेंट नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस, दे डू नॉट कंटेन प्रोटीन, बट रैदर देन प्रोटीन दे कंटेन्स ब्लड सेल्स. ठीक है, इतना पता हो गया. अब चलो बात करते हैं इनका जो ब्लड में कंपोनेंट होता है वहाँ पे प्लाज्मा के अंदर. बेसिकली अब हम लोग जो ब्लड का कंपोनेंट बात करेंगे तो देयर वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा ओनली. अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है. आपको पता है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बट दे कंटेन सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच दे कंटेन सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और मटेरियल, जो भी कहो. अब ये जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है? ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे मत करना कि इनमें प्रोटीन होते हैं इनडायरेक्ट रूप में होते हैं, डायरेक्ट रूप में नहीं होते हैं. अब यहाँ पर जो प्रोटीन होता है ये आपको बेसिकल मैं 3 टाइप को बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना. फर्स्ट वन हमारा फिब्रोनोजिन. ठीक है, पहला क्या नाम है? फिब्रोनोजिन. सेकेंड वन नेम है एल्यूबुलिन. थर्ड वन हमारा है ग्लोब्यूलिन्स. ठीक है, पहले नाम बताता हूँ, आपको लिखने का अगर मन है तो यू कैन नोट डाउन हियर. फर्स्ट वन एल्यूबुलिन, एल्यूबुलिन्स, LINS. ठीक है. सेकंड वन ग्लोब्यूलिन्स, GLOBULINS, ग्लोब्यूलिन्स. एंड थर्ड वन फिब्रोनोजिन. अब चलो ये तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है. फर्स्ट वन जान लेते हैं हम लोग फिब्रोनोजिन के बारे में. सो फिब्रोनोजिन इज एसेंशियल इन द क्लॉटिंग ऑफ
ब्लड, हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग को पता है प्लेटलेट का मेन वर्क इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंड बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजेन वो आसानी से ब्लड को क्लॉट कर पाते हैं। अब ये बात तो हो गई, अब बात होती है एल्बुलिन के बारे में एंड ग्लोब्यूलिन के बारे में। अब देखो एल्बुलिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसका जो मेन रोल होता है वो प्रेशर को, ऑस्मैटिक प्रेशर को, कहो कि एक कंपोनेंट को बचा के रखता है, ब्लड में हमेशा एक उसका ऑस्मैटिक प्रेशर रखता है। मतलब कि क्या कि वी न्यू दैट गाइस ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, ये पता ही होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ब्लड वेसल हम लोग तो जानते हैं 2 टाइप ऑफ प्रेशर होता है, फर्स्ट वन सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड वन डायस्टोलिक प्रेशर। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे, तो जब भी ब्लड फ्लो करता है तो उसका अपना जो ब्लड फ्लो हो रहा है प्रेशर हमें पता है हार्ट बीट के कारण हो रहा है, बट जब वह हमारा सिस्टोलिक प्रेशर में जब आता है तो उस समय हम लोग को पता है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक में डिफरेंस क्या है, लेकिन जब ब्लड हमारा वापस हार्ट में आता है तो वहाँ पर भी वो प्रेशर को मेंटेन रखता है, भले ही वो ना रहे, ज़्यादा या कम नहीं होता, लेकिन एक मेंटेन प्रेशर रहता है। वो किसके कारण होता है? वो एल्बुलिन के कारण होता है। सेकेंड में ग्लोब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स क्या करते हैं कि उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को इनटाइटली या कहो कि हर ऑर्गन्स में या हर रीजन्स में वे जा पाएँ और एंटीबॉडी का फंक्शन निभा पाएँ। अब एंटीबॉडी का मतलब तो आपको लग रहा होगा WBC का आई एम टॉकिंग अबाउट, नो, एज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एज ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट एज द सेल्स, ठीक है। अब थर्ड वन आपको फिब्रिनोजेन बता ही दिया मैंने, फिब्रिनोजेन आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो फाइनली गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सी एज ए ईच वन, प्लाज्मा वी डिस्कस हियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड सेल्स, एट लास्ट वी विल सी अबाउट प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स आर हाउ मेनी टाइप्स? आपको पता है 2 टाइप, RBC एंड WBC। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं, डिस्कस करते हैं RBC एंड WBC के बारे में, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। सो लेट्स सी अबाउट ब्लड सेल्स। So finally guys, I'm going to tell you about RBC first. RBC, they are also known as corpuscles. Let me see a spelling, say corpuscles, okay, corpuscles, and they are also known as erythrocytes. Erythrocytes, ठीक है, they are also known as corpuscles और एरिथ्रोसाइट्स। ये तीनों नेम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर इसमें डाउट हो गया तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, इसके बारे में जानते हैं। लेट मी सी स्पेलिंग इसका आपको सही दिख रहा है, ERY, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, यहाँ पे RO है, इसमें डॉट मत खाना है, आपको क्लियरिटी में लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। कॉर्प्यूसल्स, लेट मी सी, या कॉर्प्यूसल्स, RBC एंड एरिथ्रोसाइट, ये 3 नाम होते हैं। अब ये तीनों नेम का अपना अपना रीजन है, काहे इनका नाम होता है, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि ये जो RBCs होते हैं वे मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन ए स्पेशल पिगमेंट लाइक सब्सटेंस नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड भी होते हैं, और वही कारण है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इनका जो शेप होता है वो हमेशा बायोकन्वेक्स होता है। कैसा होता है? बायोकन्वेक्स मैमल्स में, लेकिन कई बार ये बायोकनकेव भी होता है, ठीक है। तो वाई कन्वेक्स का मतलब क्या है? कन्वेक्स और कॉनकेव आपको पता ही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में मेन डिफरेंस क्या है। जब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव की तो वहाँ पे हमारा डायग्राम कैसा होता है? ऐसा। एंड कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ऐसा होता है, यानी हमारा इस साइड का फ्लैट एंड होता है, इस साइड अगर ऐसे है तो मेरा ये वाला रीजन कॉनकेव है और ये वाला कॉन्वेक्स है। तो पहले मैंने बोला ये कॉन्वेक्स भी होता है एंड कॉनकेव भी होते हैं, लेकिन मैमल्स में ये कॉनवेक्स नहीं होकर कॉनकेव होते हैं, बायो कॉनकेव होते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि ये जो ऐसे शेप में होते हैं और यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज कॉर्पोसल्स। डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, इफ रेदर ओनली मिस्टेक है तो चलो आप मैनेज कर लेना, लेकिन इनका जो अलग नेम है वो कॉर्पोसल्स है। दे आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। व्हाई दे आर टर्म्ड एज कॉर्पोसल्स? बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस, they contains nucleus but they drop nucleus. Why? In order to increase the surface area, and because of that surface area आपको मैंने बताया है when we discussed about mitochondria, there I told you cristae. Why? What is the use of cristae? They helps in increasing surface area, and because of more surface area they are easily involved in the function they are doing. ये आसानी से ये ब्लड को हाई अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाता है, या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले पाता है या पहुंचा पाता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं इनका जो अनदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक जीते हैं, यानी एज कम्पेयर टू WBC दे लिव्स 100 to 120 डेज। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 से 120 डेज का होता है।
अब इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है कि ये मोस्टली अबोडेंस में पाया जाता है कंपेयर टू WBC, सो आपको ये जान लेना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट WBC. WBCs are also known as white blood cells, red blood cells and white blood cells. WBCs are mostly involved in the protection of cells या protection of blood या कहो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी करना है। क्योंकि अगर हम लोग सेल कहते हैं तो भाई हमारा टिश्यू होगा, टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन तो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, तो ये प्रोसेस चलता आता है। एंड सेम WBCs जो होते हैं वे इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। कौन कौन से टाइप हैं ये जो होते हैं? ये इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत कम, या तो बहुत करने पर ये 1 दिन तक जीते हैं, नहीं तो इनका कुछ ही आवर के अंदर मौत हो जाती है। अगर आपको हार्डली लेके चलूँ तो फ्यू आवर से फ्यू डेज मान लो, इनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका है 100 से 120 डेज के बीच का लाइफ स्पैन होता है। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, आपको पता ही है कैसे होते हैं कलरलेस। ये रेड होता है, ये कलरलेस होता है। रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन लिख लेना, आप अंडरलाइन कर लेना। WBC दे आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन होता है हमारा फैगोसाइट्स, सेकेंड वन होता है इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, इम्यूनोसाइट्स। अब आपको दिख रहा होगा कि देयर इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू अबाउट मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोसाइट्स। आपको बताया था मैक्रोफेजेस कंटेन्स 3 सेरोटोनिन, हेपारिन एंड हिस्टोमिन। आपको बताया था वैसोडिलेटर, कॉन्स्ट्रिक्टर एंड ये जो तीनों रोल करते थे ये कैसे आपस में डिफरेंट है। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है ना, मैं मार के ख़त्म कर दूंगा, मेरे दुश्मन को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा दुश्मन आप है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा तो मैं तो बच गया ना भाई। अगर मेरा दुश्मन ही नहीं है तो मैं तो बचाऊंगा। एंड इम्यूनोसाइट क्या करता है कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊँ कि मेरा दुश्मन कुछ मेरा बिगाड़ ही नहीं पाएगा, यानी मैं ऑल इन वन 100% पावरफुल हो गया हूँ। तो बात दोनों में मेरी सुरक्षा की ही है, मैं उससे मार कर बचूँ या खुद मजबूत बनकर बचूँ, बचता मैं ही हूँ और मेरा बचने का ही मेन रोल है। तो ठीक है, वही करता है यहाँ पे। फैगोसाइट्स क्या करता है? दे किल द डेंजरस और दी नॉन रिक्वायर्ड मटेरियल्स। बट इम्यूनोसाइट क्या करता है? ये अपने आप को पावरफुल बना देता है, इम्यून प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों का बहुत ही अलग से फिर से क्लासिफिकेशन होता है। फैगोसाइट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, एग्रैनुलोसाइट्स। अब चलो बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? ई शेप्ड होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर न्यूक्लियस। नाम है ग्रैनुलो लेकिन इरेगुलर न्यूक्लियस हो रहा है। बट यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट टोटली इसका डिफरेंस कर दो कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा रेगुलर न्यूक्लियस बट इरेगुलर या नॉट साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स आर फाउंड। अब देखो ग्रैनुलोसाइट्स का फर्दर 3 टाइप है या कहो 3 एग्जाम्पल है, वैसोफिल, स्नोफिल एंड मेसोफिल। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट के, तो यहाँ पे सिर्फ मोनोसाइट्स आते हैं। अब चलो बात करते हैं इम्यूनोसाइट्स के बारे में। तो इम्यूनोसाइट जो हैं वे इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं या कहो कि ये इम्यून को डेवलप करते हैं हमारे बॉडी में और प्रिवेंट करते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो टाइप है उनका क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है, दे आर हैविंग वन टाइप एज लिम्फोसाइट्स। ये यूनिन्यूक्लियस होता है, याद रखना। अब इसमें कोई बात रही नहीं है। एंड लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका नाम है मेगाकैरियोट्स या थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज मेगाकैरियोट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ फिब्रोनोजिन अवेलेबल इन द ब्लड प्लाज्मा। अब इसमें कोई बात रहा ही नहीं है, अगर रहेगा तो बता देना, अब उसको डिस्कस कर लेंगे। एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्फ। डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि ये हमारा अभी बचा हुआ है, इसे हम लोग कवर अप कर लेंगे पूरा। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्फ। सो गाइस, एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्फ। LYMPH. About lymph I told you in detail in class 10, lymphatic system, all these things we taught there in class 10, but here we need to take somewhat pre-introduction about lymph. तो चलो, lymph क्या होता है? They are also a content of fluid connective tissue. They are similar as blood but they are white in color. They contains WBC in more amount. Why? Because due to the prevention or due to the filtration of lymph by capillaries they contains WBC in more. RBC वहाँ पे रहता ही नहीं। कैसे बताता हूँ आपको। हम लोग को पता है कि
लिम्फ कैपिलरीज जो होते हैं वो ईच एंड एवरी ऑर्गन्स के पास जाके एक्सचेंज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड कंटेंट, वहाँ से ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन ये ब्लड का काम नहीं है, ब्लड का काम क्या है, वो वहाँ पे पहुँचा देता है, लेकिन लिम्फ ही है जो वहाँ पर से वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेते हैं। तो यू हैव टू राइट ओवर हियर दे आर कलरलेस, दे कंटेन्स WBC मोर, क्योंकि यहाँ पे लिख देना WBC इज मोर, देन they are involved in what, they are involved in transportation of, or they are involved in the taking of carbon dioxide, CO2 and waste materials, ठीक है, waste. Next thing we can see about them, they are helpful in prevention of organisms because they contain WBC more, so prevention. अब एक बात और हमेशा याद रखना कि ये CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट लेते कहाँ से, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एक नाम होता है लिम्फ, ठीक है, एक ब्लड टिश्यू करके नाम आता है, उसका नेम जो है वो आपको क्लास 10 में मैंने डिफ्रेंशिएशन से साथ आपको ईजिली वहाँ पे क्लैरिफाई करके मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम जान लो, बस उसका नेम ही आपको जानना है, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको क्लास 10 में बता चुका हूँ। बॉडी लिम्फ, ठीक है, इस नेम इज बॉडी लिम्फ, बॉडी लिम्फ से ही CO2 एंड वेस्ट को ये लेता है। So guys, these all terms we have to see about lymph, but lymph itself contains a type of system. जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना ब्लड का, वैसे ही लिम्फ का एक अलग सिस्टम है, लिम्फैटिक सिस्टम, और ये लिम्फैटिक सिस्टम भी काफ़ी एसेंशियल है एज कम्पेयर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो हियर ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू एंड एट लास्ट वीडियो गाइस वी आर गोइंग टू सी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू एट लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। तो पहले चलो थोड़ा वार्म अप हो जाए, हम लोग का थोड़ा एनर्जी कंटेंट वापस आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी एनर्जी वेस्ट कर दिया है कि नहीं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज कैपेबल एज लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, बिकॉज एज यू विल सी न्यू कंसेप्ट, कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। So finally guys, as I told you, let's start connective tissue, but finally we are going to start our nervous tissue. Nervous tissues are having one cell which is known as nerve cell or neuron. Hey, let me see. Yeah, we are going to see about nervous tissue, and first I told you about neuron. That's what I'm thinking. Yeah, neuron spelling आपको दिख गया, NEURON, neuron. They are nerve cells. We are discussing here about nerve tissue. So let me write here first nervous tissue. Nervous tissue, ठीक है, nervous tissue, not nervous tissue, because nervous means what, we are unconscious or we are feared. Nervous tissue contains one special type of cells known as nerve cell or neuron. Always remember that there are three basic components of nerve tissue. First one, cell body, or they are also known as cytone. Second one, they are axon, and third one, dendrites or dendron. Let's see about these all terms and let's locate these all terms in our diagram. तो ये वाला जो रीजन हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला पूरा रीजन यहाँ के छोड़ के यहाँ तक, ये पूरा रीजन हमारा अंदर आता है सेल बॉडी और साइटोन। ऑलवेज रिमेंबर साइटोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका एक अपना न्यूक्लियस है, अब इसके पास एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। दे कंटेन्स देयर ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑन माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्फ रिकैपेबल होते हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेबल होते हैं। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं एक्सोन के बारे में, एंड विच वन इज एक्सोन। अब एक बात हमेशा याद रखना कि ये वाला जो रीजन है ऐसे डॉट, इससे हम लोग कहते हैं निसेल ग्रैनुअल। क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रैनुअल। स्पेलिंग पे मत जाना, आपको समझना है निसेल ग्रैनुअल्स, ओके। निसेल्स ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आरबीसी और वी कैन से आरईआर एंड राइबोसोम्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी बेसिकली कहो कि निसेल ग्रैनुअल में क्या होते हैं? राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं। राइबोसोम्स भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, यानी ये तो बंदा पूरी तरह से कंप्लीट बन रहा है। अब चलो बात करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर एक्सोन किसे कहते हैं। एक्सोन ये वाला रीजन है, ठीक है। ये जो हमारा बीच का लंबा सा तारा है इससे हम लोग कहते हैं एक्सोन। एंड गाइस हियर वी कैन सी एक्सोन के अंदर निसेल ग्रैनुअल नहीं पाया था, हमेशा याद रखना एक्सोन के ऊपर निसेल ग्रैनुअल नहीं पाया था, मींस दैट एक्सोन डू नॉट कंटेन दिस पार्टिकुलर निसेल ग्रैनुअल। देन वी कैन सी गाइस कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये सभी रीजन
जो आपको ब्रांच लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन इनका फादर का नेम है, इनका जो सन हुआ वो डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। The function of dendrites is to convey the signal from different organs to our axon, and axon क्या करता है, ये हमारे बॉडी से लेकर नर्व ब्रेन पर लाता है, ब्रेन स्पाइनल कोड। As we know that nervous tissues are found in our three main region। फर्स्ट वन नर्व्स के अंदर होते हैं, बेसिकली होते हैं, स्पाइनल कोड में होते हैं, एंड हमारा ब्रेन में होता है। यही तीनों को कनेक्ट करने का तो हमारा काम है, यानी ऑर्गन से लिया, ब्रेन स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजा, एंड ब्रेन से सिग्नल जो लेता है वापस लाता है। एंड इसमें पूरा चैप्टर बना हुआ है क्लास 10 में, कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे जो हमारा क्या मोटर नर्व, क्या क्या नर्व होते हैं, अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन क्लास 10 का वीडियो मैंने बना दिया, उस पर देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। सो गाइस, हियर वी कैन सी द मेन फंक्शन इन्वॉल्व्ड बाय डेंड्रॉन इज टू टेक द इम्पल्स फ्रॉम अवे ऑफ द नर्व्स, फ्रॉम अवे डिफरेंट ऑर्गन्स टू आवर एक्सोन, एंड सेल बॉडी का हो या एक्सोन का हो, और एक्सोन क्या करता है, सेल बॉडी से लेके वापस भेजता है कहाँ, ऑर्गन के पास या हमारे ब्रेन के पास, विद द हेल्प ऑफ अदर, आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब चलो एक बात करते हैं कि ये वाला कवर का नाम क्या है, इसका नाम है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है, ACATH, इसका नाम है माइलिन शीथ। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है तो होता है, यहाँ होता है। अब बात करते हैं ये वाला, इसका नाम है ब्यूटोन्स, 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 या इसका नाम है एक साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब या ब्यूटोन। अब बात करते हैं ओवरऑल इन सभी को मिलाकर नर्व में एक चीज नहीं पाया जाता जो कि हमारा सेंट्रियोल है। विच वन, सेंट्रियोले, एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ सेंट्रियोले इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। एंड लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेल डिवीजन गाइस, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लेंगे, बिकॉज वी targeted and we determined to have a live session of 1 hour, so 4 minutes are remaining. So now we are going to see about cell division in detail. So how the Joes, comment to me man, because kabhi don't get tense, as much as we learn, as much as we will try, means कि जितना ट्राई करो उतना सीखोगे, उल्टा हो गया कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। तो now we are going to see about last one, which is our cell division. So guys, finally we are going to see about cell division. Before that, let me inform you one more information regarding to our channel, is that I have made Olympiad playlist for you all, because a number of students were asking from me about the Olympiad competitive exams preparations. For them only, class 9, for class 9 students only. If you will tell me, I will make playlist for class 10 students only. Basically for science, math, I am going to launch Olympiad playlist. There you will get only videos regarding to Olympiad syllabus, their concept and their way of preparation. So finally we are going to see about cell division. Cell division is done mostly through two processes in mammals or organism. First one, about mammals only I am talking about. First one, mitosis. Mitosis. Are you all getting this one? Mitosis. Clearly दिख रहा है? चलो mitosis, second one meiosis. Mitosis and meiotic. मियोसिस, ठीक है, मिटोसिस एंड मायोसिस, समझो आपको दिख रहा है तो मायोसिस, मिटोसिस एंड मायोसिस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स आर दैट मिटोसिस इज द सेल डिवीजन थ्रू विच ओनली सेल रिपेयरमेंट और रिपेयर एंड enlargement is seen, enlargement, but no any sexual division is seen in through mitosis, ठीक है। but in meiosis the main thing or the main process involved in meiosis is that they helps in cell division or cell growth through sexual reproduction, okay, cell growth through sexual reproduction. As we know that reproduction, leave it, as we all know that for having a zygote to be get formed, two things are required. First one we know that एक sperm चाहिए और एक ovum चाहिए, and based two terms sperm and ovum get, या कहो कि zygote and sperm, हम लोग को दो चीज चाहिए, and जब ये दोनों मिलता है आपस में तो एक हमारा एम्ब्रियो यानी zygote का फॉर्मेशन होता है, zygote, और उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला तो हमारा स्पर्म चाहिए और दूसरा ओवियम चाहिए, एंड देन ही हमारा ये जो एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है एक यूनिक न्यूक्लियस का या यूनिक सेल का, वो हमारा कहलाता है जाइगोटे। चलो बात एक चीज तो बात होगा कि ये कब होता है, मिटोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल रिपेयर या डैमेज को रिपेयर करता है, कभी कभी इलाजमेंट करता है, लेकिन ये कभी भी सेल का ग्रोथ करने में मदद नहीं करता।
अब चलो बात करते हैं इनका जो सिंबल होता है ये कैसा होता है। इनका हमेशा याद रखना, ये हमेशा 2n नंबर के फॉर्म में होता है। कैसे? 2n नंबर, एंड ये हमेशा n नंबर के फॉर्म में होता है। आपको मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए, क्रोमोसोम्स जीन कंटेन्स डीएनए एंड जीन इज नोन एज हेरिडेटरी यूनिट, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या ट्रांसफर करना है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करना है, ऑफस्प्रिंग में क्या क्या लाना है हमारे पेरेंट्स से, वे सभी डिटरमाइन करता है जीन। एंड जीन में क्या होता है? डीएनए होता है। हम लोग को पता है कि डीएनए में क्या क्या सर्टेन थिंग्स, जैसे हमारा हाइट कितना होगा, हमारा ईयर का शेप कैसा होगा, आई का नोज का कैसा शेप होगा, ये सभी डिटरमाइन करते हैं हमारे डीएनए। अब चलो एक बात और करते हैं, इनका जो जीन होता है वहाँ पे हम लोग को पता है क्या क्या होता है। एक बात और जो हमेशा याद रखना आप लोग कि इसका जो नंबर है 2n, यानी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? 2n फॉर्म में स्ट्रक्चर में टूटते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? n नंबर में। हम लोग को पता है कि ईच पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होता है, यानी 23 पेयर ऑफ होता है हर ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपको ह्यूमन बॉडी अब मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर से। अब हमें पता है कि जब माइटोसिस होगा, मिटोसिस जो भी कहो, माइटोसिस होता है तो हमेशा वहाँ पे 2n के फॉर्म में टूटेगा। 2n का कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या होती है? 2n का मतलब हमारा 26 में टूट जाता है। लेकिन जब वहाँ पे सेल ग्रोथ हमारा सेक्सुअली होता है और मायोसिस होता है, सॉरी, तो वहाँ पे n नंबर यानी 92 जो है हमारा 46 यहाँ पे 92 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। दो पेरेंट सेल यहाँ पे 46 92 करते हैं, यहाँ पे 46 ही रहेगा, यहाँ पे 92 हो गया। और ये 92 कैसे टूटते हैं? 13 और 13 26 ओ बेट गाइस, ये हम लोगों ने कैसे कर दिया, या बेट ये 92 होते हैं। अब 92 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब हम लोग 92 को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक एक दोनों से लेता है कि नहीं, यानी एक इस साइड से लेता है, एक स्पर्म के थ्रू वहाँ पर से 46 होता है और 46 वहाँ पर से होता है। लेकिन जब ये चार को आपको डिवाइड कर दो, बेसिकली ये क्या होता है हमारे 23, ठीक है। बेसिकली आपको 23 यानी जब भी ऐसा आएगा तो n नंबर में आएगा। और जो हमारा अपना जो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन है वहाँ पे ये 23 यानी 23 + 23 46, यानी न्यू जो सेल्स होते हैं वहाँ पे 46 यानी 23 ईच ऑर्गन में रहेंगे, ईच ऑर्गेनिज्म में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये कैसा हो गया गाइस? 46 एंड 46 23। वेट करो गाइस, आपको मैं क्लैरिटी कर देता हूँ। हमें पता है यहाँ पे, या देखो यही बहुत बड़ा मिस्टेक करे थे हम लोग को पता है कि जब भी मायोसिस सेल डिवीजन होता है, सो गाइस हियर आई एम टेलिंग यू ऑल, यहाँ पे 46 जो मैंने कहा पहले 46 में होता है 92 में, लेकिन यहाँ पे ये 23 आके हमारा n नंबर के फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहता है। सो ओवरऑल द गाइस वे डिस्कस द ओवरऑल कंप्लीट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी मोर डाउट रिगार्डिंग टू सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एनीथिंग मीन्स दैट अबाउट सेल टिश्यू, जो भी पूछना है पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लॉन्च अबाउट डाइवर्सिटी, and when we will go through diversity there we will see a complete information regarding to diversity। ये बहुत डाउट आ रहा है डाइवर्सिटी हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, जो भी आएगा सबको डील कर लेंगे। सो अबाउट डाइवर्सिटी we will have a mega class of 3 hours, so don't forget to watch that video। Thanks for watching this video, have a nice day to all, and till now if you had not joined the Telegram channel, go and join it। Meet you all in next video।